Good afternoon to all of you. In our series of UPSC mains PYQs, one PYQ a day, today I'll be taking up essay for all of you. See, my name is Aman Sharan and welcomes to Sri Ram's IAS. See, while looking at essay topic, as I've been discussing in my mastering essay 10-day 10 theme topic also, I'm already telling you that किस तरीके से क्लासिकल तरीके से आप essay को represent कर सकते हो. But इस particular session में, which is different series from that particular series, which is about one PYQ a day, we are also taking up the essay topic. And why are we doing so? Because in this particular thing, what we require is that we need to address a particular essay which came in 2024 and how to write that particular essay in detail. Okay. But in my series also, in my 10-day 10-day theme series also, I discuss all these essays. So I'll keep this session a bit short, but it is very important session because we are going to discuss a very important essay today, which is nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him power. Such a beautiful quote by Abraham Lincoln. Who was Abraham Lincoln? He was the president of USA during Civil War and considered to be one of the most important figures in US history as well as global history. तो इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज की बात की जा रही है जो कैरेक्टर की बात करता है. किस तरह कैरेक्टर की बात करता है? एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एडवर्सिटी में भी खड़ा रहता है. एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक ऑफ दिस एसे इज नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी. कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर. अगर उसके कैरेक्टर को चेक करना है, उसके चरित्र को चेक करना है, तो उसे पावर देके देखो. ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक. इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और चूंकि देयर आर टू मेनी ऑप्शंस इन दिस पर्टिकुलर एसे, सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वे यू वांट टू. देयर आर लॉट ऑफ पर्सनालिटीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंटरनेशनल पर्सनालिटीज. Quoting them, you can start this essay and you can draft a very beautiful essay. But because there are too many options in this particular topic, so that's why you need to structure your essay very precisely. और इसलिए brainstorming बहुत जरूरी है इस particular essay topic के अंदर, क्योंकि you need to specifically write what you are going to write in the final essay. उसको आपको पहले से लिख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्लासिकल तरीके से इस essay topic को हैंडल करना भी बहुत जरूरी है आप सबके लिए. Okay, so without wasting any time, let's move to the slide number 2, which is about interpretation of the essay theme. Interpretation of the essay theme is very important. Why? Again, because notification of UPSC says clarity of expression. Clarity of expression की बात करता है, कौन करता है? UPSC notification about each and every essay topic which is going to come in your UPSC CSE mains. So that's why this clarity of expression is very much needed. और उसी clarity के साथ आपको इस particular topic को interpret करना पड़ेगा, which is basically adversity is a test of endurance, power is a test of virtue. इस तरीके से you need to interpret, deconstruct करते हुए आपको अपने ऐसे topic को interpret करना पड़ेगा. The next is in adversity circumstances dominate, with power choices dominate. इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का contrast develop करना पड़ेगा in your essay, and through that only you'll be able to deconstruct the theme of the essay, the actual meaning of the essay, which you are going to explain in your essay when you write it. Okay, power can corrupt or elevate, character determines the direction. Power can corrupt or elevate, power corrupts and absolute, power corrupts absolutely. ये बहुत ही फेमस कोट है जो आप सबने सुना होगा. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस तरह के जो कोट्स हैं वो इस पर्टिकुलर एसे में काफी काम आने वाले हैं. क्यों काम आने वाले हैं? क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टर की बात करनी है. आपको ये बात करनी है कि किस तरीके से एक इंसान का चरित्र जो है वो डिसाइड करता है कि वो एडवर्सिटी में कैसे बिहेव करेगा. ओके, और अगर पावर मिल जाए तो कैसे बिहेव करेगा. दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ कोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर एसे. द नेक्स्ट वन इज कनेक्ट टू यूपीएससी एथोस, ह्यूमिलिटी एंड अथॉरिटी. यूपीएससी एथोस के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो यूपीएससी का ऐसे है, आप यूपीएससी एग्जाम में वो ऐसे लिख रहे हैं. तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने यूपीएससी के नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, विच इज मोस्ट एक्यूरेटली रिलेटेड टू GS4. जो GS4 टॉपिक है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उस पर्टिकुलर जनरल स्टडीज के पेपर से आपको यहां पे एक्सेप्ट्स निकालने पड़ेंगे, नॉलेज को डिराइव करना पड़ेगा और आपको इंप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक में. क्योंकि ये एसे का टॉपिक क्या है? ये बहुत ज्यादा एथिकल नेचर का है, क्योंकि ये बात करता है अबाउट द कैरेक्टर
एक इंसान के चरित्र की बात करता है किस कॉन्टेक्स्ट में? पावर के कॉन्टेक्स्ट में. Okay, so that's why it becomes very important for all of you to look into this particular topic from the GS force perspective. लेकिन I would like to comment again over it कि इसे जनरल स्टडीज के पेपर की तरह नहीं लेना है. इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को. आपको ऐसे की तरह ही ट्रीट करना है ऐसे के टॉपिक को. ओके, नेक्स्ट वन इज क्राफ्टिंग द इंट्रोडक्शन. बहुत जरूरी पार्ट है ये. इंट्रोडक्शन क्राफ्ट करना काफी कुछ इस ऐसे के अंदर आपका काम जो है उसे इजी कर देगा. कैसे कर देगा इजी? अगर आप एक पावरफुल कोट या हिस्टोरिकल एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अशोका द कंकरर टर्न्ड इनटू अशोक द जस्ट, चंड अशोक से धम्म अशोक. ओके, चंड अशोक से धम्म अशोक. इसकी जर्नी जो है अशोक की, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है. और ये मेंशन करते हुए ही आप एक एनेक्डोट लोगों के सामने रख सकते हैं. लोग, आई मीन टू से इवेल्युएटर, दैट इज अशोक द कंकरर टर्न्ड इनटू अशोक द जस्ट आफ्टर रियलाइजिंग द बर्डन ऑफ पावर ओवर लाइफ एंड डेथ. कब पाया था अशोक ने ऐसा? कलिंग वॉर के टाइम पे. कलिंग वॉर में जो ब्लडशेड हुआ, जो इतनी ज्यादा होमिसाइड हुआ, इतने सारे लोगों की मास किलिंग हुई, उसे देख के कहीं ना कहीं जो अशोक का एटीट्यूड था, अशोक द ग्रेट का एटीट्यूड, या फिर चंड अशोक का जो एटीट्यूड था, वो काफी कुछ बदल गया. एंड ही अडॉप्टेड धम्म. धम्म वाज वेरी मच रिलेटेड टू बुद्धिज्म, एंड थ्रू दिस यू कैन स्टार्ट योर एसे. क्योंकि आपको बात किस बातें करनी है? एक इंसान के चरित्र की. कब? जब उसके पास पावर है तो. और इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अशोक जो है, जो कि राजा भी था, उसके चरित्र के हिसाब से वो चंड अशोक कहलाता था बिफोर द कलिंग वॉर, बट आफ्टर द कलिंग वॉर, लुकिंग एट द ब्लडशेड, ही टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू धम्म अशोक. तो फाइनल चरित्र क्या हुआ अशोक का? अशोक का फाइनल चरित्र एक बहुत ही बैलेंस्ड आदमी का हुआ, बहुत ही रैशनल आदमी का हुआ. गॉट इट? सो दिस, दैट इज व्हाई दीस काइंड ऑफ एनेक्डोट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो कोर टर्म्स है, एडवर्सिटी, एक्सटर्नल हार्डशिप, पावर, एजेंसी प्लस इन्फ्लुएंस विदाउट कंस्ट्रेंट, या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, एथिकल एंड मोरल कंपास ऑफ एन इंडिविजुअल. इस तरह की बातों को आप अपने इंट्रोडक्शन में रख सकते हो, क्योंकि आप बेसिकली जो एसे के टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे होगे इंट्रोडक्शन. आपको ये इवैल्यूएटर को समझाना भी तो जरूरी है कि आपको एसे का टॉपिक समझ में आया है. और एसे का टॉपिक समझने के लिए जो एसे का इंट्रोडक्शन है, वो बेसिकली ये बताना चाहिए कि आपको वो एसे टॉपिक कितना समझ में आया है. और वो कितना समझ में आने के पीछे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो की टर्म्स हैं ऐसे के टॉपिक में, क्या वो आप डीकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो. जैसे कि एडवर्सिटी, पावर, कैरेक्टर, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ टर्म्स नीड टू बी डीकंस्ट्रक्टेड इन द एसे इंट्रोडक्शन. सो दिस यू कैन डू वेरी वेल. द नेक्स्ट वन इज पॉसिबल अप्रोचेस. एनेक्डोटल, जैसे पहले बताया, यूज लिंकन और मंडेला's राइज टू पावर. यू कैन टॉक अबाउट इट, हाउ लिंकन थ्रू ऑल द हार्डशिप्स, because of losing lot of elections, after that he eventually came up to be, or he basically became one of the most successful presidents in the history of United States. तो इस तरह के एनेक्डोट्स आप दे सकते हो. मंडेला के लाइफ के बारे में बोल सकते हो कि 27 साल तक वो जेल में रहे और उसके बाद भी अपार्थीड के अगेंस्ट उन्होंने अपना जो झंडा है उसे बुलंद रखा. तो इस तरह के एग्जांपल्स के थ्रू यू कैन टॉक अबाउट कि एडवर्सिटी तो झेल ही ली, साथ ही साथ जब पावर भी आया, जब मंडेला came into power, then how he responded, how he was, what we can say, very much okay, or you can say very humble towards the whites. तो इस तरह की चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में. इसके अलावा फिलोसफिकल, ब्रिंग इन प्लेटो और कौटिल्यस व्यू ऑन पावर एंड धर्म. आप प्लेटो और कौटिल्य के जो पावर और धर्म के बीच में जो बातें हैं, उसके बारे में जो टेक है उनका, उसके बारे में आप भी बोल सकते हो, और इसके थ्रू भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज कंटेम्पररी. यूज ब्यूरोक्रेटिक एग्जांपल्स. एग्जांपल विनोद राय, टीएन सेशन. विनोद राय, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, who was there in UPA 2, and then TN Session, probably the most successful or most famous election commissioner of India. इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हो. ये बेसिकली ये दिखाएगा कि कैसे आप ब्यूरोक्रेसी में भी कैरेक्टर की बात कर सकते हो, कि इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो कैसे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को पूरा टर्न अराउंड कर सकता है. तो इस तरह की चीजों के थ्रू आपने ऐसे को यू कैन इंट्रोड्यूस. नेक्स्ट इज एंड द इंट्रो विद अ डायरेक्शनल सेंटेंस.
This essay explores how power becomes a true litmus test of human integrity and leadership. इस तरीके से you can basically introduce your essay in a very profound manner, and then you can proceed to the next part, which is body. And once such an introduction is constructed, is crafted, then it will be easy for you to address the other parts of the essay in the body, or the major part of the essay in the body, and summarize all the aspects of this particular essay, so that your essay can be holistic. Okay. Next one is drafting the body, which is very important, because body is something in which you are going to put up all the actual facts, all the actual explanations, and through which you can communicate to the evaluator that you understand the topic. So that's why this particular part becomes very important. Break the body into 4 or 5 core segments. Each should include theory, examples, and link to UPSC relevant values. Okay. पावर वर्सेस एडवर्सिटी, 2 टेस्ट 1 कैरेक्टर. इस तरीके से यू कैन स्टार्ट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट विच बेसिकली टेल्स यू अबाउट पावर वर्सेस एडवर्सिटी. इस तरह की चीजों को, जैसा कि मैं पहले भी ऐसे बता चुका हूं कि पावर और एडवर्सिटी के बीच के अंतर, देखिए पावर एडवर्सिटी एग्जैक्टली डायगोनली अपोजिट है. एक पावर में इंसान के पास इंसेसेंट राइट होता है टू डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू. And when I say incessant right, what I mean is that there are very much less limitations for a person to perform an act. That's what is called power. Okay? और adversity क्या है? कहीं ना कहीं से adversity है एक external issue which has been brought into a person's life. So that's why power और adversity का connotation exactly opposite है, और इस तरह के dilemma को अपने आप essay में include कर सकते हो, so as to address all the various dimensions of this particular essay topic. Next one is power in public life, a moral challenge. पब्लिक लाइफ में पावर, कल को आप लोग ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो किस तरीके से पावर इन पब्लिक लाइफ जो है वो एक मोरल डिलेमा में लेके आएगी आपको, एक मोरल चैलेंज रहेगी आपके लिए, बिकॉज यू नीड टू डू द राइट थिंग, नॉट अ थिंग विच इज गुड और बैड, बट द राइट थिंग. और वो राइट थिंग करने के लिए यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ मोरल एप्टीट्यूड विच कैन हेल्प यू टू डिसाइड एन एक्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर केस. तो इस तरह की चीजों को आपको इनकलकेट करना पड़ेगा अपने ऐसे के अंदर, सो एज टू मेक द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड दैट यू हैव वेरी प्रोफाउंडली अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ द ऐसे. द नेक्स्ट वन इज पावर इन इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी मैटर्स. किस तरह के इंस्टीट्यूशंस, आप क्या की बात कर सकते हो, जहां पर क्या विनोद राय का एग्जांपल दे सकते हो, उसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन की बात कर सकते हो, जहां पे आप टीएन सेशन का नाम ले सकते हैं, और इस तरह के एग्जांपल्स लेते हुए, या फिर आप अशोक खेमका का नाम ले सकते हैं और सिंपल एक आईएएस के बारे में बता सकते हैं, हु हैज बीन इनटू सो मेनी ट्रांसफर्स अक्रॉस हिज ब्यूरोक्रेटिक लाइफ, एंड थ्रू दैट यू कैन अचीव द रियल मीनिंग ऑफ दिस ऐसे टॉपिक. कि पावर मिलने के बावजूद भी अशोक खेमका जैसे जो फिगर्स है, डिस्पाइट ऑफ द सरकार बीइंग चेंज्ड, जो भी गवर्नमेंट थी वो चेंज होने के बावजूद भी अशोक खेमका के लाइफ में कोई खास चेंज नहीं आया, क्योंकि ही वॉज वेरी अपराइट, ही वॉज एन अपराइट ऑफिसर हु वॉज नॉट ओके विथ एनी काइंड ऑफ करप्शन. Okay, so these kind of examples you can include in your essay. It will basically enhance your essay. It will add value to your essay and make the evaluator understand that you have understood all the aspects of that particular essay topic. Next is power in daily life, not just leaders. See, try to understand. I have already asked you all that एसे के टॉपिक में पर्सनलाइजेशन या पर्सोनिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, और पर्सोनिफिकेशन करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज दैट कि आप अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल देना पड़ेगा, कहीं पर जब आपने बहुत ही छोटे तबके पर लीडरशिप का एग्जांपल देखा हो. जैसे कि सपोज कीजिए कि बाढ़ आ गई, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो भी लीडरशिप बहुत मैटर करती है, और कुछ ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया होता है, पर जब उनके पास पावर रहती है, अथॉरिटी रहती है, वो इस पोजीशन में रहते हैं कि वो दे कैन डिक्टेट टर्म्स, देन देयर ट्रू कैरेक्टर कम्स आउट. और इस तरह के एग्जांपल के थ्रू आप अपने ऐसे को पर्सोनिफाई कर सकते हो एंड बेसिकली अपने ओपिनियन को पुट अक्रॉस कर सकते हो टू द इवैल्यूएटर, एंड ही विल बी वेरी प्लीज्ड टू रीड दैट पर्टिकुलर एनेक्डोट एंड गिव यू गुड मार्क्स. So these kind of things can be included in the body of the essay, which is the most important part of the essay, because whatever you understand about that particular theme or particular topic, that you are going to tell in the body only.
So that's why give due importance to body, and you can imply as many tools as you want, but try to explore maximum dimensions so as to address or do justice to this particular essay topic. Okay? Next is conclusion, which is the last part, and it is very important because you need to end on a high. एक आपको हाई पे छोड़ना पड़ेगा अपने एसे को, because essay is all about expression, and if you leave your essay on a high, then you are going to get good marks. How? See, the kind of essays you can do is that conclude with a powerful quote. With great power comes great responsibility. वोल्टेयर ने बोला था, अलग बात है, स्पाइडरमैन का बहुत फेमस डायलॉग है ये. With great power comes great responsibility. तो जब आप पावर की बात करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको इक्वेट कर सकते हो, so as to understand that, or so as to make the evaluator understand that you understand the meaning of responsibility and it is an important character trait. एक इंसान का जिम्मेदार होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग है. ओके, तो इस तरह की चीजों से आप अपने एसे को एंड कर सकते हो. इसके अलावा क्लोजिंग थॉट भी दे सकते हो कि इन अ नेशन दैट इंटरेस्ट पावर टू इट्स सिविल सर्वेंट्स द हाईएस्ट टेस्ट इज नॉट इन क्लियरिंग एन एग्जाम बट इन द डेली चॉइस टू अपहोल्ड जस्टिस ओवर कन्वीनियंस. ओके, तो इस तरह की चीजों से आप बेसिकली ये बता सकते हो कि आपको केवल ये ऐसे टॉपिक समझ में ही नहीं आया है, बल्कि इस ऐसे टॉपिक को आप ब्यूरोक्रेटिक लाइफ से भी जोड़ के देख सकते हो. और इस तरीके से जब आप पर्सोनिफिकेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल छाप है ऐसे पे वो रह जाएगी, विच इवैल्यूएटर विल डेफिनेटली अप्रिशिएट. Why? Because most of the people will be telling the story of Mandela, Abraham Lincoln, Gandhi ji, Martin Luther King, and these kind of personalities. But if you can personify that essay and you can tell about something which you did, or in this particular situation which you did, some case study which you can mention in which some kind of small calamity happened, a low degree calamity happened, and in which you were able to do something, you were able to show your character, the test of character, you passed that test of character, then it will be really appreciated. But don't try to lie or don't try to be very magnanimous in your expression, because it will unnecessarily create issues for you. So try to be very balanced in your approach while writing this kind of essay. Okay, so this is what is all about this particular essay topic, and I must tell you that it is very important for you all to write essays. We today took up one essay from 2024, so I would ask you all, I would urge you all that you all should be writing essays. कभी नहीं तो लास्ट कम से कम 2 से 3 साल के essays आप 1000 से 1200 वर्ड ना सही बट एटलीस्ट 700 वर्ड लिख के रखिए, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको इतनी दिक्कत ना आए. एंड दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. थैंक यू.